Now the next topic is charge on electron. The charge on electron is determined by the scientist R.A. Millikan, and this experiment is known as Millikan oil drop experiment. Okay, by this experiment, the Millikan found the charge on the electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. It is minus means the charge of electron is in negative 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, the experiment is here. You can see there is a apparatus in which there is a spray, there is a microscope for observation, there are x-rays passes, x-ray source, okay, and there are oil drops. Okay, तो हम इसको हम ऐसे समझेंगे. The Millikan done an experiment in which he spray oil in the form of mist, okay, in that area. After that, the one drop among of these drops is observed by this telescopic eyepiece, and one drop is in the influence of the gravitational force, and it is moving from up to down. Okay, in this chamber where there are two plates are placed which are electrically charged, this plate is plus charged and this is negatively charged. Okay, between these, in this area, x-rays are passes, and x-rays ionize the gas or air which filled in this area, and the gas molecule, suppose this is the gas molecule and this is your air, sorry, दिस इज योर ऑयल मॉलिक्यूल. ओके, तो यहाँ से जैसे ही एक्सरे ने स्ट्राइक किया इस पे, इट रिलीज एन इलेक्ट्रॉन, आइनाइज होने पर इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉट बाय द ऑयल ड्रॉप. ऑयल ड्रॉप ने इस इलेक्ट्रॉन को कैच कर लिया. ओके, नाउ दिस ऑयल ड्रॉप्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज. कौन सा चार्ज आ गया इनके ऊपर? नेगेटिव चार्ज आ गया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉट बाय दिस ऑयल ड्रॉप्स. ओके, इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के बाद the Millikan decided that the charge on the drop is Q is equal to Ne. Q is equal to Ne, where Q is the charge and N is the number of electrons and E is the charge. Okay, E is the charge of electron. So total charge of the electron उसने फाइंड आउट किया. तो यहाँ से नंबर इलेक्ट्रॉन्स पता है, सो दैट मीन्स जो Q आएगा, जो प्रोडक्ट है, इट इज़ N इंटू ई, इट इज़ N इंटू ई. सो बाई दिस he can easily find the charge on the electron. Okay, so charge on the electron is what? Minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. It is exact value is 1.6022 into 10 to the power minus 19 coulomb. Now the next is mass of electron. Mass of electron find out करना है, very easy. E upon E by me. Me is the mass of electron, so E to E cancel. ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे by the help of the charge and the E by m value. We know that the charge of electron is 1.60 into 10 to the power minus 19 coulomb, and the E by m of electron is 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg. So by this calculation we can found 9.1 into 10 to the power minus 13 kg. So this is the mass of electron. Okay, the mass of electron is negligible as compared to the mass of proton. It is 1 upon 1837 times smaller than the mass of proton. So that's why in an atom, when we come to calculate the atomic mass, we can only, or we only calculate the mass of proton and mass of neutron, because mass of electron is negligible as compared to those. Now the next topic is discovery of proton. Okay, discovery of proton. Who discovered proton? Discovery of proton is Goldstein, by Goldstein. Okay, the scientist is Goldstein in 1836. Okay, and the protons are positively charged particles. इसको हम कैसे स्टडी करेंगे? सेम एक्सपेरिमेंट है, सेम एक्सपेरिमेंट है. ओके, अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट पता है, देन यू कैन do it well, very good. Again, so this is the experiment in which again a tube, again high voltage, again electrode, but now electrode are changed. Okay, that time the anode was perforated, but this time the cathode is perforated. Okay, vacuum pump, same, fluorescent material same, but now this side fluorescent material is coated, so direction is changed. It means, so gas pressure is what? 10 to the power minus mm. It means gas pressure is now increases. अब की बार हमने gas pressure थोड़ा increase कर दिया है. When we complete the circuit and the electricity passes, okay, observation के लिए at least दोनों ही साइड में आप कोटेड
करेंगे, बट यहाँ पर एक्चुअली क्या हमने परफोरेटेड एनोड यूज़ किया। ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम में ही कंप्लीट नहीं हो गया, आफ्टर 2 to 3 टाइम्स जब उसको ऑब्जर्वेशंस हुए तो उन्होंने कुछ इसमें क्या क्या मॉडिफाई किया। आफ्टर दैट जो फाइनल ऑब्जर्वेशन निकला है वो ये है दैट इस साइड में परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया एंड दी ZNS से कॉटेड कर दिया, तो क्या होता है दिस टाइम कैथोड रेज और एनोड रेज आपको दिखेंगी, दोनों ही दिखेंगे, एनोड रेज और कैथोड रेज, दोनों का डायरेक्शन भी एग्जैक्ट ऑपोजिट रहेगा, बट वही चीज़ है आपको जो स्पॉट कहाँ मिलते हैं, किस साइड में मिलते हैं, क्योंकि बिकॉज कैथोड रेज तो ऑलरेडी डिस्कवर है, तो अब की बार कौन होगा, एनोड रेज डिस्कवर होंगी। कैसे चेक करते हैं, इसका ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन है बेटा गैसियस आयंस। कैसे आपके पास जो एनोड सॉरी आपके पास जो कैथोड रेज है, कैथोड रेज मींस दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स आपके इसके अंदर जो आप गैस फील करोगे, द गैस इज फील्ड इन दिस, द गैस विच फील्ड इन दिस ट्यूब, उस गैस के मॉलिक्यूल को ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, स्ट्राइक करेंगे और इसको आइनाइज कर देंगे। क्या करेंगे, इसको आइनाइज कर देंगे। ओके, आइनाइज करने के बाद में सपोज इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब इस पर चार्ज क्या रह गया, प्लस चार्ज। ठीक है, दीज आर दी gaseous ions and these are the what, these are the cathode rays। लास्ट टाइम क्या था, लास्ट टाइम तो कैथोड से निकल रही थी कैथोड रेज, सॉरी दीज आर दी एनोड रेज। ओके, एनोड रेज क्यों कहेंगे हम समझते हैं इसको। व्हेन हाई वोल्टेज अप्लाइड इन कैथोड रे ट्यूब अंडर 10⁻⁻1 mm of Hg pressure of gas, colored visible rays produce from the anode and go towards cathode। अब की बार एनोड से प्रोड्यूस होकर कहाँ जा रही है, कैथोड की साइड में। कैसी गैस है, कलर्ड रेज प्रोड्यूस हुई है। इट मीन्स दीज रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कैसे बोल सकते हैं, बिकॉज दीज आर गोइंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब कैथोड क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की साइड कौन जाएगा, विच इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विच आर पॉजिटिव गैसेस आयंस एंड वर ऑल्सो नेम्ड पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज और एनोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज सिमिलरली, काफ़ी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, कुछ डिफरेंट रहेगी। फर्स्ट थिंग, दे rays travel in straight line as well as the cathode rays. The anode rays are deflected by the magnetic and the electrical field also, okay, but the deflection is in the opposite direction to the कैथोड रेज। कैथोड रेज जिस साइड में डिफ्लेक्ट हो रही है उसकी ऑपोजिट साइड में ये डिफ्लेक्ट होगी व्हेन वी अप्लाई द इलेक्ट्रिकल चार्ज। ओके, क्यों, बिकॉज कैथोड रेज क्या थी, सॉरी कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, तो पॉजिटिव टर्मिनल की साइड डिफ्लेक्ट होंगी, बट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, सो ये नेगेटिव टर्मिनल की साइड डिफ्लेक्ट होंगी। दे पजेस हीटिंग इफेक्ट ऑल्सो, दे पजेस काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल्सो रोटेट द व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। उनके पाथ में आप कोई wheel place कर दोगे, that time they strike on that and the wheel starting to rolling। okay, the E by M ratio depends upon the nature of gas, this is very important line। The cathode, in the case of cathode rays, the E by M ratio always constant, it does not depend on the electrode and the nature of gas, but because anode rays are gaseous ions, इनोड रेज आर वोट गैसेस आयंस, तो ये किस पर डिपेंड करेगी, ये आप जो गैस फील कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगी। सो द ई बाई एम रेशियो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, इट मीन्स एनोड रेज का ई बाई एम रेशियो हमेशा एग्जैक्ट सेम नहीं रहेगा। ओके, वो चेंज होता रहेगा, इट्स डिपेंड ऑन द गैस, जो गैस है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। एनोड रेज आर नॉट प्रोटॉन्स, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस, सो देयर प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, दीज आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स। इन केस ऑफ हाइड्रोजन, सपोज हम कोई हाइड्रोजन गैस को वहाँ पर फील करते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन में का जो ई बाई एम ऑफ हाइड्रोजन है दैट इज 9.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम पर kg। ओके, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम कैसे, बिकॉज ई बाई एम, एम क्या है यहाँ पर, चार्ज अपॉन मास है। ओके, मास सब लाइटेस्ट गैस जो होगी उसी का ई बाई एम जो होगा वो क्या होगा बेटा, और मैक्सिमम रहेगा, बिकॉज मास लाइटेस्ट है, सबसे कम वैल्यू है, तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा ई बाई एम का वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सपोज मास अगर इंक्रीज कर दोगे तो ई बाई एम की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, है ना। द मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज हम स्मॉल नंबर, कोई नंबर सपोज 3/4 कर रहे हैं, 3/4 से रिजल्ट आएगा, उसको मैं 3/5 कर दूं तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। The mass of positively charged particle is obtained from hydrogen is charge upon mass is highest of lightest गैस, लाइटेस्ट गैस के लिए हाईएस्ट रहेगा। अब यहाँ से हम ई बाई एम निकाल सकते हैं। सपोज क्या हुआ, हमने एक्चुअली यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फील कर दी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फील कर दी, ठीक है। अभी यहाँ से जो रेज आ रही है बेटा, रेज कौन सी आ रही है आपकी, एनोड रेज। एनोड रेज ने इस पर स्ट्राइक किया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। ओके, यहाँ पर कौन है आपका, एनोड है, इस साइड कौन है बेटा आपका, कैथोड है। कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, एनोड क्या पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो ये रेस कहाँ जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ऑब्वियसली दीज आर पॉजिटिवली चार्ज होगी। अच्छा, ये क्या है, एक्चुअल में गैसियस आयंस हैं, तो इनका ई बाई एम किस पर डिपेंड करेगा, इस गैस पे नेचर पर डिपेंड करेगा। ओके, तो यहाँ से हम ई बाई एम भी इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सपोज हाइड्रोजन फाइंड आउट किया, तो हाइड्रोजन के अंदर
जो आपको मास मिलेगा वो क्या मिलेगा, चेक करते हैं, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg, इतना मास मिला। दिस मास इज अबाउट 1837 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उतना उससे हैवियर है। दिस मास इज प्रैक्टिकली इक्वल टू दैट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम एंड इज रिगार्डेड एज AMU। हाइड्रोजन एटम का मास और अभी आपको जो गैसियस आयन मिला यहाँ पर, गैसियस आयन, उसका जो मास है बेटा वो मास ऑलमोस्ट इक्वल है, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इट मीन्स वी कैन से दैट हाइड्रोजन के पास एक आयन ऐसा है, देर इज वन आयन इज प्रेजेंट इन हाइड्रोजन, okay, and which is regarded as AMU, the lightest positively charged particle। इस पार्टिकल को क्या नाम दिया, प्रोटॉन। इट मीन्स हाइड्रोजन कंटेन वन पार्टिकल ऑफ दिस काइंड, मीन्स हाइड्रोजन कंटेन वन प्रोटॉन। अब चेक करो, दैट इज सोडियम, सोडियम को हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे, उसका मास एज कंपेयर टू दी हाइड्रोजन 23 टाइम्स हेवियर आएगा। इट मीन्स इट कंटेन्स 23 प्रोटॉन। इट इज पॉसिबल, ओके। सो सोडियम को हम समझते हैं, लिसन, ये हाइड्रोजन 1H1 है, ठीक है, 1H1 है, और सोडियम, सोडियम को चेक करो 23 और यहाँ पर हो गया 11। अच्छा, इसके पास कितना प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है, इसके पास कितना प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है, तो ये 11 टाइम इससे हेवियर आएगा। तो इससे हम कंपेरिजन कर सकते हैं दैट इट कंटेन ओनली वन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, सो दैट्स वाई इट इज कंटेन 11 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ओके। तो यहाँ से हम इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 23 तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है। द प्रोटॉन इज व्हाट, अ सब एटॉमिक पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कितना चार्ज, 1 यूनिट positive charge which is 1.6022 into 10 to the minus 19 coulomb and has mass 1.67 into 10 to the minus 27 kg equal to that of an atom of hydrogen। तो चार्ज में चेक कर लेते हैं हम, चार्ज कितना है इसका। इलेक्ट्रॉन का चार्ज था बेटा -1.67 या 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, एंड द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज प्लस, बाकी सेम है, ओके। तो मैग्नीट्यूड सेम है, साइन चेंज। नाउ मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू 1 यूनिट मास ओनली इन केस ऑफ हाइड्रोजन। फॉर अदर गैसेज, अगर कोई और गैस आपने यूज कर ली, इट वॉज फाउंड टू बी होल नंबर मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू, ओके। 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। सो दैट्स वाई whole number multiple of this value, mass of proton, this means that the atoms of other gases consist of 2 or more protons। वन तो किस में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन में। अब कोई और नेक्स्ट केस लेके आओगे तो 2 और मोर प्रोटॉन्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे। एनोड रेज आर नॉट प्रोटॉन्स, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एनोड रेज आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एनोड रेज आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स because mass of hydrogen is equal to mass of proton, so anode rays are positively gaseous ions, so their E by M ratio not same, not fundamental particles। clear हो गया सबको, cathode rays और electrons are fundamental particles but the anode rays are positively gaseous ion, so they are not fundamental, और depend करेगा गैस पे। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, नाउ द टाइम फॉर द स्टडी अबाउट द एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन मॉडल, इट इज़ वेरी इजी मॉडल। एक इसका हाइपोथेसिस है कि एटम एक्चुअल में होता कैसा है। सो अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटम इज अ एटम कंसिस्ट अ यूनिफॉर्म स्फीयर इन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सपोज ये आपका स्फीयर है और ये पूरा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, पूरा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना, ये पूरा क्या है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके इनसाइड में कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स, कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है उसके अंदर। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, 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 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा एटम, मीन्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज इक्वल। द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इनटू इट। द रेडियस ऑफ स्फीयर is of the order of 10 to the power minus 10 meter, which is equal to the size of the atom। The model is much similar to pudding of positive charge। pudding किसको बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज को, and with resins electrons embedded into it, so this model is also known as resin pudding model or plum pudding model। this model was also compared with watermelon model, in which red part of the watermelon positive charge and C's represent electron embedded in it, so it is also known as watermelon मॉडल। तो वाटरमेलन को जब हम कट करेंगे बेटा, तो उसके इनसाइड जो पूरा रेड पार्ट होता है, पूरा जो रेड पार्ट रहता है ना, वो समझ लो आप एटम का पॉजिटिव चार्ज है, और उसके बाद में जो ब्लैक सीड्स प्रेजेंट है, उसके अंदर ब्लैक सीड्स प्रेजेंट है, ओके। उस साइड में क्या है, उसके अंदर एक सेकेंड है, उसके अंदर जो सीड्स प्रेजेंट रहते हैं,
ये हो गए सीड्स, ओके, और ये हो गया आपका पूरा रेड पार्ट, दिस इज द रेड पार्ट एंड द सीड्स, ओके, क्लियर हो रहा है सबको? ये सीड्स हैं इसके अंदर, दी सीड्स आर इलेक्ट्रॉन्स and the red part is positive charge. So this is also similar to the watermelon, so that's why we can say it is a watermelon model. Clear हो गया सबको? So ये आपने 9th क्लास में 10th क्लास में वैसे भी ऑलरेडी स्टडी किया है इसको, दैट इज़ नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमको जो पढ़ना है दैट इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉडल पढ़ना है. सो नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल इज व्हाट? थॉमसन एटॉमिक मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिव चार्ज होल्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम. कैसे पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखा है, इट कांट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल. इट ऑल्सो फेल्ड टू एक्सप्लेन द एटम्स स्टेबिलिटी. एंड इसके बाद जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट होता है, इट मीन्स जो रदरफोर्ड के जो ऑब्जर्वेशन एंड द कंक्लूजन्स हैं उसको भी ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता है. लिसन, व्हेन सपोज द मॉडल ऑफ द थॉमसन, मॉडल ऑफ द थॉमसन अगर बहुत अच्छा होता, क्लियर होता, राइट होता, देन दूसरे किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स आएंगे वो सिमिलर होने चाहिए थे, बट यहाँ पर सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर है. इस मीन्स कुछ तो गलत है. तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली बेस्ड था, उसके जो कंक्लूजन्स या ऑब्जर्वेशंस है दे आर मोर करेक्ट देन द थॉमसन, तो थॉमसन के मॉडल को फेल कर दिया गया उसके बाद में. सो नाउ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यह सब आपने स्टडी किया है इन द your previous classes. So it is called Rutherford's alpha particle scattering experiment. Alpha particle source यहाँ पर है गोल्ड फॉइल के, ये गोल्ड फॉइल, इट इज योर गोल्ड फॉइल एंड द अल्फा पार्टिकल्स bombardment done on the gold foil and the alpha particles penetrate the gold foil and strike on this sheet and this sheet is coated again by the ZNS fluorescent material by which we can found the direction and the presence of the alpha particles on the sheet. Okay, spotted will be observe on that sheet. उन स्पॉट को देख के हम बता सकते हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन है, वो स्टार्टिंग से और एंड तक अनडिफ्लेक्टेड निकले हैं. ओके, या फिर हम कह सकते हैं पेनिट्रेट किया है, नहीं किया, वो सारा ऑब्जर्वेशन हमको इससे हो सकता है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, एज नाउ ZNS कोटिंग फॉर वाई, ZNS is a fluorescent material, so that's why we can say alpha particle detector also. So यहाँ पर एक आपके पास एक मॉडल एक डायग्राम और है. ये सपोज इज ए सिंगल एटम और इस सिंगल एटम में से अल्फा पार्टिकल ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, तो क्लियरली समझ लेना, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट. सपोज यहाँ पर है इसका पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है. अल्फा पार्टिकल सर पॉजिटिवली चार्ज. अल्फा पार्टिकल एक्चुअली में होते क्या है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम का न्यूक्लियस है. हीलियम आपको पता है 2 4 होता है. ओके, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को आप निकाल दोगे तो क्या बचेगा? न्यूक्लियस. ओके, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो बचा क्या? न्यूक्लियस. तो हीलियम का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज. सो इसमें से सपोज जो भी न्यूक्लियस के पास से जाएगा क्लोजर टू द न्यूक्लियस, हाईली डिफ्लेक्टेड, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन. उसके बाद सपोज कोई यहाँ से निकल रहा है, इट मीन्स उसमें थोड़ा सा कम डिविएशन होगा, लेस एंगल डिविएशन, और द अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक ऑन द सेंटर ऑफ द एटम, दे केम अगेन टू देयर पाथ एट द 180 डिग्री एंगल. क्लियर है सबको? तो यहाँ से हम ऑब्जर्वेशन को 1 by 1 पढ़ेंगे. एक्सपेरिमेंट, इन दिस एक्सपेरिमेंट अ पीस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडियम इज placed into a lead block. The block is constructed in way that slits that a narrow beam of high energy alpha particle was directed at a thin gold foil. Thickness कितनी? About 100 mm. To detect alpha particles after scattering, a movable circular screen coated with ZNS, again ZNS, is placed around the gold foil. When alpha particles strike the ZNS screen, these produce flashes of light or scintillations which can be डिटेक्टेड. ऑब्जर्वेशन मीन्स क्या होगा? जब वो वहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो स्पॉट्स बना लेंगे सिंपल वे में. ऑब्जर्वेशंस, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, नियरली 99% पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, पास हो गए अनडिफ्लेक्टेड, स्ट्रेट चले गए. अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स. ओके, कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे दैट डिफ्लेक्टेड थ्रू दी स्मॉल एंगल्स एंड वेरी फ्यू, about 1 in 20,000, did not pass through the foil at all, come back to its own path again. मतलब जिस रास्ते गए थे, जिस पाथ पे थे, अगेन उसी पाथ पे वो रिटर्न हो गए about 180 degree angle. Conclusion is what? Most of the alpha particles pass through the gold foil undeflected. इसका मतलब क्या हुआ? It means there is must be a very large empty space within the atom. ओके, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मीन्स एटम का जो मोस्ट ऑफ पार्ट है, मोस्ट ऑफ पार्ट कैसा है बेटा? वेकेंट. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट ये निकलता है. ओके, नंबर 2, सिंस सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड
in certain angles, it means that there is a heavy positively charged mass present in the atom. कहीं ना कहीं atom में heavy positive charge present है. That's why the alpha particles are deflected with some angle. Moreover, this mass must be occupying a very small space, because we know that, okay, by the first observation, that most of the parts is vacant. So it means the positively charge is situated in a very small area within the atom, because only a few alpha particles suffered large deflection. बहुत कम alpha particles ने large deflection हुआ, otherwise तो सब में होना चाहिए था, है ना. So the strong deflection or even bouncing back of alpha particle, bouncing back means strike किया and then again उसके path पे return हो गया. The strong deflection or even bouncing back of alpha particles from the foil explained to be the direction collision with the heavy positively charged mass. डायरेक्शन कॉलिजन मीन्स सिंपल थिंग है, वो सीधा गया, स्ट्राइक किया, कॉलिजन हुआ. कॉलिजन मीन्स उस पर स्ट्राइक किया एंड देन रिटर्न आ गया. The positively charged heavy mass which occupies only a small volume in an atom is called nucleus. जो एटम के सेंटर में जो small area hai, that occupies the whole positive charge, whole mass of the atom, it is called nucleus. So the credit to discover the nucleus is goes to the Mr. Rutherford. Rutherford's nuclear model of atom, इन observations के basis पे उसने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम प्रेजेंट किया. सो मीन क्या इसके मेन postulates है. नाउ in an atom, the entire mass and positive charge is constructed in a very small region at the center known as nucleus. Volume of nucleus is negligible as compared to the volume of atom. ये कैसा, कितना बड़ा? सपोज 5 किलोमीटर रेडियस का एक ग्राउंड है और उसके सेंटर में आपने एक फुटबॉल रख दिया है. दैट इज द 5 किलोमीटर रेडियस का जो पूरा ग्राउंड है, दैट इज द एटम, और उसके कंपेरिजन में आपका जो बॉल है, दैट इज द न्यूक्लियस, इतना स्मॉल है. सो इट इज नेग्लिजिबल. ठीक है. द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू व्हाट? प्रोटॉन्स. The mass of nucleus is due to protons and some other neutral particles, each having mass nearly equal to the mass of the proton. It means nucleons, जिनको हम न्यूक्लियंस बोलेंगे. सेंटर में न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय व्हाट? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स which balance the positive charge and the nucleus, positive charge of the nucleus. Thus the atom is electrically neutral. जितना positive charge उतना ही negative charge, तो atom as whole electrically neutral. The electrons are not stationary but are revolving around the nucleus at very high speed, like planets revolving around the sun. जैसे sun के अराउंड में planets revolve कर रहे हैं, वैसे electrons are not stationary, they are continuously revolving around the nucleus. Sun as compared, sun को compare करो आप nucleus से, then electrons compare with the planets. Okay, so it is also known as planetary model. The electrons and the nucleus are held together by electrostatic force of attraction, because nucleus has positive charge and electrons have negative charge, so they are the nucleus attract the electrons by the electrostatic force. Most of the space in the atom between the nucleus and the electron is empty. So clear हो गया यहाँ से, ये तो पूरा मॉडल हो गया. देन इट इज़ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट एंड वेरी गुड ऑब्जर्वेशंस एंड द कंक्लूजन्स. ओके, इससे एटॉमिक मॉडल को समझने में बहुत हेल्प रहा है, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस है. व्हाट आर द लिमिटेशंस? when scientists asked to the Rutherford that what about the stability of the atom? Okay, so there is no answer given by the Rutherford, because according to physics, okay, when a charged particle revolve around the another charged particle, it continuously releasing its energy. और जब वो continuously इसकी एनर्जी रिलीज करेगा, सपोज ये आपका चार्ज पार्टिकल दूसरा चार्ज पार्टिकल इसके रिवॉल्व कर रहा है, तो एनर्जी जब रिलीज करेगा बेटा, तो इसकी कभी न कभी एनर्जी डिक्रीज होकर जीरो होगी. उस टाइम इसका जो रेडियस है वो डिक्रीज होता जाएगा और एक टाइम ये क्या करेगा? न्यूक्लियस में जाकर के ऐड हो जाएगा. दिस टाइम एटम इज नॉट स्टेबल. बट एटम इज स्टेबल, वी नो. सो Rutherford can't explain the stability of atom. कैसे? The Coulomb force between the electron and the nucleus is equal to the F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught K Q1 Q2 upon R square. Okay, ये उसके Coulomb जो force है उसका फॉर्मूला है. तो Rutherford model could be believed to be based on solar system in which planets revolve around the sun, but if any charged particle in a circular orbit could undergo acceleration, and during acceleration the charged particle would radiate energy. Okay, वो radiation की form में अपनी energy को क्या कर रहा है? Emit कर रहा है. So revolving electrons lose energy and fall into the nucleus, and atom would be unstable, but we know that atom is stable. If we consider electron are stationary the due to attraction by nucleus, suppose electrons क्या है? Stationary है, तो यहाँ पर तो positive charge है और यहाँ पर अगर negative charge है, तो ये क्या करेगा बेटा? इसको
attract करेगा, then at the last electron will be fall into the nucleus and atom is unstable. So what is reason behind the stability of the atom? The Rutherford's model can't explain this. Okay, Rutherford did not explain the electronic configuration of the atom. और एक बहुत बड़ी उसका drawback ये था कि that is the, according to him, that is the proton or that is the nucleus and these are electron and they are revolving. He said they are revolving, but उसने ये नहीं बताया कि रिवॉल्व कैसे कर रहे हैं, इनके पास ऑर्बिट है नहीं है. ओके, उसके बारे में कोई भी उसका एक्सप्लेनेशन नहीं था, जो कि आगे जाके बोर एक्सप्लेन करेगा. बट दैट टाइम इट इज़ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट एंड with this we I'm going to end this video, and in the next video, in the next class, we will discuss about the next topic, Bohr atomic model, or the next topics of your chapter. Thank you.